आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस करने से पहले हम जो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आज तक हमने पढ़ी हुई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़िए। सो नाउ इफ आई आस्क यू टू प्राइम फैक्टराइज द नंबर say 112. So prime factorization of 112, firstly we see that this number is even, so let's divide it by 2. So number is 56, then again divided by 2 we get 28, then again we can divide it by 2 and we get 14, again divided by 2 and we get 7. So we get all the prime factors of this number, means we can write 112 as 2 raised to power 4 into 7. So this is the prime factorization of 112. Similarly, whatever number was generally given to us, we do prime factorization like this. Now, can you tell me what would be the prime factorization of 29? So I have seen that people have written it as 29 into 1. So if you are writing it as 29 into 1, what you have done, you may write it as factorization, but definitely this is not prime factorization. Why it is not prime factorization? Because I told you that 1 is neither prime nor composite. So if I ask you to prime factorize the number 29, so its prime factorization is only 29. It has no factors. So now what we can see from here, that any number which is composite means which have more than 2 factors. So any number which is composite can be written in the prime factorization form, or you can say you can write it as the product of its prime factors. And if the number is prime, that means you cannot write it in the product form, or you cannot write it as the product of its prime factors. That is not possible because the number is itself prime. Now, can I write this 1, 1, 2 as 7 into 2 raised to power 4? Is this prime factorization or not? This is also prime factorization because 2 is also prime, 7 is also prime, and we have written 112 in as the product of 2's and 7 only. And what is the difference between this factorization and this factorization? Is there any difference? So difference is in the order only, and that is the same number. Like order doesn't matter, you may write the prime factors in any order, but you can check that the prime numbers, they will remain same. If 2 अगर इसमें 4 times था तो it will remain in 4 times only. मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है पर ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स चेंज हो जाएं. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से एक चीज जो समझ आ रही है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, वो ये है, प्राइम फैक्टर ऑफ composite number can be done. We can do the prime factorization of any composite number. ठीक है, और किसी भी ऑर्डर में लिखो प्राइम फैक्टर वही होंगे, पहली चीज. दूसरा, अगर नंबर आपका प्राइम है तो उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. यू कैन नॉट राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. एंड राइटिंग अ प्राइम नंबर एज 29 into 1, so this is not prime factorization. ठीक है, दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन. क्यों? क्योंकि 1 तो यूनिक नंबर है, 1 इज नॉट प्राइम ना. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर होंगे, all those numbers will be prime only. You cannot include 1 in the prime factorization of numbers. Okay, so the fundamental theorem of arithmetic, that is based on this much knowledge only. ठीक है,
एक सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इसकी एक फॉर्मल स्टेटमेंट देख लेनी है, इससे ज्यादा उस थ्योरम में कुछ और नहीं है. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फॉर्मली. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट सेज दैट एनी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, और दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो हर हाल में आप उन्हें प्राइम में तो लिख ही सकते हो, है ना. सो एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक बात है. जैसे हमने 112 को अभी अभी क्या लिखा था, वी हैव रिटन 112 एज 2 raised to power 4 into 7. Then and this factorization is unique. What does it means? That if you are doing prime factorization or your friend is doing prime factorization, maybe मुझे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी वे से चलती हूँ कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट. ठीक है. और दिस इज वेरी इजी टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल भी हमें पता होता है, 5 का रूल भी पता होता है, 7 का रूल भी पता होता है. तो हम नॉर्मली इस तरह से चलते हैं. नाउ हो सकता है आपको 16 का टेबल याद है और आपको झट से याद आया कि 16 into 7 भी तो ये होता है ना 112. तो हो सकता है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले ही 7 लिख लिया. अगर आपने पहले 7 लिख लिया तो here you will get 16 and then you will write 2 into 2, 8, then 2, 4, then 2, 2, and you have written it as 7 into 2 raised to power 4. The number is same. The number of prime factors in the factorization, that is also same, and the prime numbers used in this factorization, they are also same. That means this is unique. You may write it in some other order only, but the factorization is unique. ठीक है. So what he has written, this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है. तो हो सकता है ऑर्डर किसी ने अलग लिखा हो, बट हर एक बंदा जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो फैक्टराइजेशन यही होगी. ठीक है. इसी चीज को हम मतलब इन द अदर वेज, इन द अदर वर्ड्स वी मे से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक. किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है. अब उसने कॉम्पोजिट नहीं कहा, क्या कहा, नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर तो सारे है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. और इसमें से 4 तो कॉम्पोजिट है और 2, 3 क्या है, दे आर प्राइम. और 1 क्या है, 1 इज यूनिक. अब वो क्या कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है. तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ओनली 2. 3 इज ओनली 3 and 4 we can write it as 2 into 2, and that is also unique, that it is always equal to 2 raised to power 2, or there are 2 2's in the prime factorization, no other factor. ठीक है. except for the order of its factors. ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है. जैसे मैंने 14 लिखा तो 14 को 2 into 7 भी लिख सकते हैं और 7 into 2 भी लिख सकते हैं, and both are the prime factorizations. ठीक है. तो ऑर्डरिंग में चेंज बट द फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ठीक है. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपली क्या कह रही है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होगी. सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज होगा किसी फैक्टराइजेशन में तो वो क्या है, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. दैट्स ऑल. So hope you understood it. So now let's move to the methods to find the LCM and HCF of numbers by using prime factorization method. इससे पहले शायद जब आपने मेथड पढ़ा था टू फाइंड द HCF तो वो उच्च लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड था. ठीक है. जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है. तो अब हम किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. सो से
we want to find the HCF of say 72 and the other number is say 68. ठीक है, so these are two numbers and we need to find their HCF. So what we'll do, we'll do the prime factorization of both numbers separately. So firstly we are doing the prime factorization of 72. It is divisible by 2, so let's write 2 and here we have 36. Then again it is divisible by 2 and here comes 18. Then 2, here comes 9. Then now this is divisible by 3, so 3 into 3. So 72, we may write 72 as 2 cube and 3 square. Now let's find the prime factorization of 68. So 68, this is again divisible by 2 and the number here is 34. Then again divisible by 2, so here we have 17 and now 17 is prime, you cannot further factorize it. So 68 can be written as 2 raised to power 2 into 17. So this is the prime factorization of both numbers. Now शायद याद होगा आपने जब छोटे होते प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी तो आप इसको कैसे लिखते थे, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, और इधर से लिखते थे 68 जिसको आप लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 17. फिर देखा एक बार 2 कॉमन है, दूसरी बार 2 कॉमन है, तो दैट मीन्स एंड अदर्स आर नॉट कॉमन, है ना, तो यू सेड दैट you used to say that HCF of 68 and 72 is equal to 2 into 2 which is equal to 4. ऐसे करते थे. अब हम इसके एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में भी ये चीज पता करते हैं कि कैसे करना है. ठीक है, अब देखो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, पर छोटी पावर किस 2 की है, ये वाले 2 की. सो द स्मॉलेस्ट पावर HCF क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स is the product of smallest powers of each common prime factor. So 2 is the common prime factor. इसमें से जो smallest power है वो कौन सी है, 2 raised to power 2. तो मतलब the HCF of 68 and 72 is the product of smallest powers of its common prime factor. Smallest power इसमें 2 की तो 2 होगी, 3 कॉमन नहीं है, उसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो उसमें नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन्स 3 और 17 तो कॉमन है ही नहीं, और जो कॉमन था उसमें से हमने स्मॉलेस्ट पावर लिख ली, तो दैट मीन्स HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 4. So that means now we can find the HCF using the prime factorization method. ठीक है, करना क्या है, दोनों नंबर के in the first step you will find the prime factorization of both numbers. ठीक है, दोनों को as the product of their prime factors लिख लिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स के प्रोडक्ट लिख लो, तो वो जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. ठीक है, तो ये इस केस में आ गया 4. दैट्स ऑल. सो सिर्फ HCF ही नहीं, वी कैन फाइंड द LCM ऑल्सो बाय यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है ना, तो चलो अब फाइंड करते हैं LCM. सो अगेन वी आर टेकिंग टू नंबर्स, नंबर कोई भी ले लेते हैं, से 56 एंड 72. 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो अभी की थी, सो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 raised to power 3 एंड 3 raised to power 2. 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर लेते हैं. सो 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2. Here we have 28, then 2, 14 and 14 can be written as 2 into 7.
So prime factorization of 56 is equal to 2 raised to power 3 into 7. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन. अब LCM क्या है? LCM ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स 56 and 72 is equal to, क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. पहले क्या था? कॉमन फैक्टर्स की सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी HCF के लिए. अब क्या है? जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब की ग्रेटेस्ट पावर्स लेनी है. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है 2, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3, क्योंकि दोनों में ही 3 है. देन 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, बिकॉज दूसरे नंबर में तो 3 है ही नहीं. और 7 की ग्रेटेस्ट पावर है 1 ओनली. ठीक है, सो दिस बिकम्स द LCM. सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 3 is 8, 3 raised to power 2 is 9, and this 7. So this is equal to 72 into 7, which is equal to 504. So the LCM of the given two numbers 56 and 72 is 504. So this is how you can find the LCM of two numbers. Also here we were doing prime factorization ना, तो यहाँ पे मैं ये इस तरह से मेथड जो है वो यूज कर रही हूँ. आप ओरली भी कर सकते हो. कैसे? लाइक 56, आपको पता है कि 56 किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में आता है. 8 7 जा, और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है कि 8 कैन बी रिटन एज 2 into 4 and 4 is 2 into 2. So that means this is equal to 2 into 3 which is 8 into 7. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो है ये आप पेपर में शो करो. दिस इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. कंपल्सरी क्या है कि आपने पहले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हो, दूसरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हो, और उसके बाद LCM या HCF लिखा हो. आपकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आई है? आपने इस मेथड से निकाली है या फिर माइंड कैलकुलेशंस ओरली करी है? दैट डजंट मैटर. वो शो करने की भी कहीं पे जरूरत नहीं है. ठीक है, सो this was all about LCM and HCF, means how to find them. Now the next thing is there is some relation between the HCF and LCM. किसी भी दो नंबर का LCM, अभी हमने किसका HCF फाइंड किया था? 56 और 72 का LCM. So let's write. So LCM of 56 and 72, that was equal to 504. And HCF of these two numbers, that would be अगर आप देखो तो 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 raised to power 3 into 7, और 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. तो इन दोनों में से HCF फाइंड करेंगे तो 2 raised to power 3 आ जाएगा. सो दैट इज 8. ठीक है, सो नाउ ही सेज, इसको ही डिलीट कर देते हैं. सो नाउ ही सेज दैट LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. ठीक है, तो LCM इंटू HCF करके देखें, ये बना 504 इंटू 8. So this is equal to the product of two numbers. Product of two numbers मतलब 56 और 72. अब एक मेथड तो ये है कि आप इसका प्रोडक्ट देख लो कि 504 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 4032, और इस तरफ भी करके देखोगे तो वो भी 4032 आ जाएगा. ठीक है, अब कई बार नंबर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. ठीक है ना, एक मेथड है कि आप डायरेक्टली क्या लिख लो, इसको भी 4032 लिख लो, इसको भी 4032 लिख लो, और कह दो कि yes, the right hand side is equal to left hand side. Hence we have verified that the HCF and the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of numbers itself. ठीक है, यहां से भी आप कंक्लूड कर सकते हो.
या फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपने पढ़ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जब प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है तो हम इनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें पहले ही पता है ना, अभी हमने इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स की करी थी, तो इसकी भी कर लेंगे। चलो देख लेते हैं क्या था। 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 7, और 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब 504 क्या था? 504 was actually 2 raised to power 3, पिछले स्लाइड में देखा था ना, it was 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 7। ठीक है, into ये 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, तो यही चीज है। अब 56 क्या है, ये इधर हमने लिखे ही हुए हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 7, और 72 इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। सो व्हाट इज दिस? पावर्स ऐड होंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं ना फॉर द सेम बेस, तो 2 और 2 यहाँ पे सेम बेस है, तो पावर्स ऐड होगी, बन गई 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7। अब दूसरी साइड देखें, वहां पे भी यही है 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3, मतलब 2 रेज टू पावर 6 इंटू एक बार 3 रेज टू पावर 2 है, एक बार 7 है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों साइड पे सेम आ रही है तो क्या ये हो सकता है कि ये दो अलग अलग नंबर हो? सो दैट इज नेवर पॉसिबल ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की यूनिक है। तो that means on the both sides, because the prime factorization same, that means the numbers are same. So we have verified that the product of LCM and HCF of two numbers is equal to the product of their product of the numbers itself. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली वेरीफाई, एंड ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। ठीक है जी, अब इसी को यूज करके वी कैन फाइंड टू अदर रिलेशंस। लाइक कभी कभी क्या हो सकता है कि उसने क्या दिया है कि एलसीएम और दोनों नंबर पता है तो एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो उस केस में आपने नंबर्स का एचसीएफ नहीं फाइंड करना, यू विल बी यूजिंग दिस रिलेशन ओनली। तो एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय देयर एलसीएम। और सिमिलरली एक और रिलेशन जो यहीं से डिराइव हो जाता है वो क्या है कि अगर HCF और नंबर पता है तो उनसे भी हम LCM पता कर सकते हैं। हाउ? कि LCM ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय देयर HCF। अब वो कभी तुम्हारे से ये भी पूछ सकता है कि किन्हीं दो नंबर्स का LCM ये है, HCF ये है, तो एक नंबर गिवन है, सेकंड नंबर बताओ। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन ओनली यू कैन फाइंड दैट ऑल्सो ना, कि लाइक A इज गिवन, LCM एंड HCF इज गिवन, तो फाइंड आउट B। सो B इज इक्वल टू LCM of A and B multiplied by HCF of A and B divided by A. That means all these relations can easily be derived from दिस मच नॉलेज ओनली। ठीक है ना, अगर ये एक रिलेशन पता है तो ये तो वहां से अपने आप ही डेराइव हो जाएंगे, तो ये थोड़ा ना याद करने हैं, सिंपली ये याद रखना और ये याद रखना कि इस रिलेशन में क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, दैट्स ऑल। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ दो नंबर्स को लेके होंगे। ठीक है, बट जब कभी हम कंपटीशन में होते हैं तो कभी कभी वो 3 नंबर की बात भी कर लेता है, और कम से कम क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला बताया है तो ये एक बार कंसेप्ट्स में बताना जरूर बनता है। However, we will not be solving any problems based on this, but बड़ा आसान सा फॉर्मूला है तो याद रखने में क्या जाता है ना। तो चलो वो भी लिख लेते हैं कि अगर दो नंबर्स का LCM पता है 3 नंबर्स का, तो HCF कैसे फाइंड करना है। सो वी कैन राइट द HCF ऑफ 3 नंबर्स से A B C इज इक्वल टू
the product of numbers multiplied by the LCM of those three numbers divided by the LCM of two numbers product of LCMs of two numbers taken at a time. मतलब LCM AB का multiplied by LCM BC का multiplied by LCM CA का. ठीक है, तो मतलब HCF के फॉर्मूले में सारे के सारे LCM आएंगे. ABC प्रोडक्ट हो गया नंबर्स का मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइड बाय टू नंबर्स के LCMs का प्रोडक्ट. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहां से आसान सा फॉर्मूला याद हो जाता है कि LCM क्या है तीन नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स multiplied by HCF of those three numbers divide by HCF of two numbers taken at a time का प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना कि हाँ थ्री नंबर्स का रिलेशन भी है, उनके HCF LCM का भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है. और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो ये फॉर्मूला भी बड़ा आसान है याद करना. ठीक है, तो सिंपली इतना ही इस चैप्टर में, नॉट चैप्टर बट इस एक्सरसाइज में. तो जितने भी अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े हैं इसके बेस्ड नाउ वी वुड बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज. तो वो हम क्विकली जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, okay then. See you in the next video on exercise 1.3. Bye. Thank you.